Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनरल में S&P ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। टर्म जनरल मैंने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि हम S और P ब्लॉक एलिमेंट्स जो एक साथ पढ़ रहे हैं, इसमें हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। जैसा कि आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें S ब्लॉक एलिमेंट्स की भी लिखनी है और P ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो ये कॉमन है सबों के लिए। इसी तरह से हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये चार्ज है which an atom has or appears to have in its combined state. तो what does this mean कि charge which it has or appears to have? Which it has means that the actual charge present on the atom in the combined state. Appears to have means formal charge. Actually, that isn't the charge present on that atom, but it is given assigned that charge. As in HCl, we observed that there is covalent bond formation between hydrogen and chlorine. Though when there is covalent bond, it indicates that no loss or gain of electron takes place, so there is no charge neither on hydrogen nor on chlorine. Though there is small partial negative charge, partial positive charge because of forming partial covalent bond, or rather polar covalent bond, but we assign +1 oxidation state to hydrogen and -1 oxidation state to chlorine. So this is formal positive charge and formal negative charge. It also indicates oxidation state. So in this oxidation state, we have yesterday discussed the oxidation state of group second elements among S block elements, and I have also told you about group first. Group first always have an oxidation state of +1 because they are highly electropositive elements and they prefer to lose their one electron. So they show +1 oxidation state. And group second elements show +2 oxidation state as they have 2 electrons in their outermost shell and they prefer to lose 2 electrons. So it is electronic configuration which decides the oxidation state of an element. Then we have discussed at length the oxidation state of halogens, where we have seen that halogens show an oxidation state of -1 because they gain 1 electron to achieve noble gas configuration. So in their ionic compounds, halogens always show an oxidation state of -1. But we have seen that except fluorine, all other halogens they show an oxidation state of +1, +3, +5, and +7, and that has been explained yesterday. These different oxidation status, positive oxidation status, they are shown by these halogens in their covalent compounds, and for forming covalent bonds we need half-filled atomic orbitals, and you have seen yesterday how these halogens, though they have only one half-filled orbital in their ground state, but when excitation takes place, their p electrons jump to d orbitals. With the result, more and more half-filled orbitals are created. With the result, they can form 3 covalent bonds, 5 covalent bonds, and 7 covalent bonds, and that has been yesterday fully explained. But today, I want to discuss oxidation state of nitrogen family also, because there we observe some interesting pointers regarding oxidation state. So here today we will discuss oxidation state of nitrogen family also. Oxidation state of nitrogen family. As you know
Nitrogen family contains nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. All these elements, they have Ns2, Np3 as their valence shell electronic configuration. Valence shell electronic configuration. This valence shell electronic configuration indicates that there are 5 electrons in the outermost shell of the elements present in nitrogen family, 2 in S subshell and 3 in P subshell. 5 electrons. That means they need 3 more electrons to complete their octet. 3 electrons are needed to complete their octet. So it is a common sense that these elements should gain 3 electrons because it is very difficult to lose 5 electrons. The loss of 5 electrons requires a large amount of energy which we can't manage in chemical reactions. So it is easy to gain 3 electrons than to lose 5 electrons. So we expect that these elements of the nitrogen family, they should gain 3 electrons and should get the noble gas configuration. But when gain of 3 electrons will take place, that means these elements should show an oxidation state of -3. Though it happens in case of nitrogen, it gains 3 electrons in most of its compounds to show an oxidation state of -3. But other elements of the same group do not prefer to gain 3 electrons, but they prefer to share these 3 electrons present in the P subshell, because you see this is Ns2, that means S subshell is completely filled, whereas Np3 means there are 3 P half-filled orbitals. So these half-filled orbitals can form 3 covalent bonds. So they show an oxidation state of 3. It may be -3 or +3. That will depend upon the electronegativity of the element with which they will share their electrons. So +3 and -3 oxidation states are shown by these compounds, these elements. So as per the oxidation state, as I have told you that it is something important, you will observe that these elements, they show both negative as well as positive oxidation states. Nitrogen family elements show negative as well as positive oxidation states. Number 1. Number 2, as per electronic configuration, we expect that they should show -3 or +3 oxidation state. In ionic compounds, they should show -3 or +3 sometimes, that if they can manage that, but actually that doesn't happen. -3 is shown generally by nitrogen by gaining electrons. Other elements cannot gain electrons, so they show -3 if they form a covalent bond with less electronegative atom. If they form a covalent bond with more electronegative, then they will show positive +3 oxygen state. So we expect only 2 oxygen states, -3 and +3. But in actual practice, we observe that these elements show variable oxygen status, some other oxygen status besides -3 and +3. So we will discuss here the various oxygen status along with the examples, along with the compounds in which those different oxygen states are shown. So first of all, I will take negative oxidation states. Negative oxidation states. तो जहां तक नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट का ताल्लुक है, तो आप देख लेंगे कि जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है in its ionic compounds. Nitrogen shows an oxidation state of -3 in its ionic compounds like calcium nitride Ca3N2 और मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। कॉमन सेंस है, कैल्शियम जो है ये इसका ऑक्सीजन स्टेट +2 होता है, तो यहां पर 3 कैल्शियम है, 3 कैल्शियम का ऑक्सीजन स्टेट +6 आएगा, तो जो 2 नाइट्रोजन है इनका तो -6 हो गया, जाहिर सी बात है एक नाइट्रोजन का -3 आता है। तो इस कंपाउंड में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 है और इस कंपाउंड में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N-3 नेगेटिव आयन बनाता है, जिसे हम नाइट्राइड कहते हैं, नाइट्राइड। इसलिए इन कंपाउंड्स का नाम है कैल्शियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इसलिए आप ये याद रखिए कि नाइट्रोजन जो है ये -3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है इन इट्स आयनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, या मैं लिखूंगा नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, इसके पीछे सिंपल रीजन है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई electronegativity. Due to its small size and high electronegativity, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये नाइट्राइड आयन बनाता है, एज इन दीज 2 कंपाउंड्स कैल्शियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से जो बाकी एलिमेंट्स हैं, मिसाल तौर पर हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस भी कंपाउंड बनाता है कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2, कैल्शियम फास्फाइड कंपाउंड बनाता है, या ये आर्सेनिक बनाता है Na3AS ट्राइसोडियम आर्सेनाइड, कैल्शियम फास्फाइड सोडियम आर्सेनाइड। इन दोनों कंपाउंड्स में ये जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीजन स्टेट है -3, और इसी तरह से यहां पर जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट भी है -3। मगर ये बात यहां पर नोट करनी है कि ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है, ये फास्फोरस और आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक और फास्फोरस जो है, ये कैल्शियम और सोडियम के साथ आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बल्कि ये इनके साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। These two are covalent compounds, they are not ionic compounds। नंबर 1, जब ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गई तो फिर कोवेलेंट कंपाउंड की वजह से आर्सेनिक 3 बॉन्ड बनाता है विद 3 सोडियम एटम्स, और फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है विद 2 कैल्शियम एटम्स। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि फास्फोरस जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कैल्शियम, इसलिए इस पे जो -3 चार्ज आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, तो यहां पर ये जो चार्ज -3 है दैट इज फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है। बट क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन स्टेट जो होता है, इट इज द चार्ज which an atom has or appears to have. So in these compounds, phosphorus and arsenic appear to have a charge of -3. So -3 is the oxygen state of phosphorus and arsenic in these 2 compounds. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट करेंगे कि नाइट्रोजन जो है, जैसे आपने ऊपर देख लिया कि नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है इन इट्स आयनिक कंपाउंड्स एंड इन सम कोवेलेंट कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है जो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा with elements having less electronegativity than hydrogen, वहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 आएगा, जैसा आप देखते हैं इन केस ऑफ अमोनिया।
NH3। अमोनिया जो है ये अयानिक कोवलेंट कंपाउंड है, अमोनिया कोवलेंट कंपाउंड है, मगर यहां पर नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और एक हाइड्रोजन तो +1, तो 3 पे होगी +3। तो नाइट्रोजन जो है अयानिक कंपाउंड्स के अलावा कोवलेंट कंपाउंड्स में भी नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, जबकि नाइट्रोजन के बगैर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे भी फॉर्मल -3 चार्ज होती है। आप समझ गए अब मेरे ये कहने का क्या मतलब, माइनस फॉर्मल -3, दैट मींस दे शो माइनस ऑक्सीजन स्टेट बट इन देयर कोवलेंट कंपाउंड्स। तो मैं कह रहा हूं कि इसके -3 चार्ज के अलावा नाइट्रोजन जो है ये -2 और -1 चार्ज भी दिखाता है। नाइट्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एंड -1। क्योंकि हम नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट से हम पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूं कि नाइट्रोजन जो है और बाकी एलिमेंट जो हैं उन पे -3 और -3 नेगेटिव चार्ज होती है, मगर नाइट्रोजन जो है इस पे -3 के अलावा -2 भी हो सकता है और -1 भी। इसके लिए आप देखिए कंपाउंड, एक कंपाउंड है हमारे पास NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज एक पे है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है +2 है। इसी तरह से इस हाइड्रोजन पे भी +2 चार्ज होगी, तो टोटल में +4 आती है इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है यहां पर फिर नाइट्रोजन 2 जो बचते हैं इन पे -4 चार्ज होगी, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन पे -4 चार्ज है, इसका मतलब हुआ एक नाइट्रोजन पे -2 चार्ज है। सो नाइट्रोजन shows an oxidation state of -2 in case of the compound हाइड्राजीन। इसी तरह से मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन जो है इस पे -1 चार्ज भी होती है, तो -1 चार्ज नाइट्रोजन के इस कंपाउंड पे है। आप देख लीजिए कंपाउंड का नाम है NH2OH, इस तरह लिखूंगा NH2OH, हाइड्रोक्सल एमीन। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्सल एमीन। ये जो हाइड्रोक्सल एमीन कंपाउंड है इसमें आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये जो OH ग्रुप है इस पे -1 चार्ज है और यहां पर जो हाइड्रोजन है H2, 2 हाइड्रोजन पे +2 चार्ज आ जाती है। अब ये हाइड्रोजन की +2 चार्ज जो है ये -2 चार्ज से कैंसिल होगा। अब एक माइनस चार्ज तो OH पे है, दूसरी एक -1 चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे है। तो इस तरह से इस कंपाउंड में नाइट्रोजन पे -1 चार्ज आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जहां तक नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेटस का ताल्लुक है, -3 ऑक्सीजन स्टेट इस ग्रुप के सारे एलिमेंट दिखा रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन -3 एक्चुअल -3 चार्ज दिखाता है इन केस ऑफ इट इज आयनिक कंपाउंड्स, while as other elements of the same group also show a -3 charge, but in their covalent compounds that means they have formal -3 charges, while as nitrogen also shows -3 oxygen state in its covalent compounds as an ammonia. And this nitrogen besides -3 shows an oxygen state of -2 and -1, as has been quoted here in these two examples. In hydrazine it has a charge of -2, and in case of hydroxylamine it has a charge of -1. So this is about the negative oxidation states of the compounds of nitrogen family. Then I will take it is positive oxidation states. नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी लेंगे, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली जो है इसके एलिमेंट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेटस भी दिखा रहे हैं। तो इनमें से अक्सर 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेटस होते हैं, एक है +3 एंड एक है +5, +3 एंड +5। तो दूसरा पॉइंट है
positive oxidation states. Positive oxidation states of नाइट्रोजन फैमिली है ये। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे वो ये कि ये फैमिली जो है नाइट्रोजन फैमिली, इसके एलिमेंट्स दो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स दिखा रहे हैं। एक है +3 और दूसरा है +5। +3 and +5 oxidation states are shown by the elements of group 15 नाइट्रोजन फैमिली। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, गौर कीजिए इसमें कि +5 ऑक्सीजन स्टेट जो है एक एलिमेंट के लिए एग्जैक्टली +5 चार्ज डेवलप तब हो जाएगी जब वो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हम पहले से जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना भी मुश्किल हो जाता है, तो 5 लॉस करना तो नामुमकिन है। इसलिए ये जो +5 ऑक्सीजन स्टेट हम कहते हैं ये फॉर्मल +5 है, ये एग्जैक्ट +5 नहीं है। फॉर्मल +5 चार्ज इज शोन बाय दीज कंपाउंड्स, दैट मीन्स बाय दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो फॉर्मल चार्ज अक्सर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये +5 ऑक्सीजन स्टेट दिखाएंगे जब ये बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स जब ये बनाएंगे, when they will form 5 covalent bonds with more electronegative atoms, यानी जो एलिमेंट इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उन्हीं के साथ रिएक्शन करके जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उन कोवेलेंट कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स पे +5 चार्ज आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहां पर फास्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है 5 क्लोरीन एटम्स के साथ। क्योंकि क्लोरीन एटम जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, फास्फोरस पे प्लस चार्ज आ जाएगी। क्योंकि यहां पर 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 तो 5 क्लोरीन पे -5 आ जाएगा, तो एक फास्फोरस पे +5 आ जाएगा। ये यहां पर PCl5 जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो फॉर्मल +5 चार्ज आ जाती है फास्फोरस पे। इस तरह जो इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स हैं उन पे भी यही हाल होता है। तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि आप यहां पर देख लीजिए, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है NS2Np3। तो Np3 मींस 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए और बनाता 5 है। तो 5 कैसे बनेंगे वो आप जानते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, NS2 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू d ऑर्बिटल। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी NS1 Np3 और Nd1। तो इस तरह से 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्रिएट होंगे और 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2s2 2p3 है, यानी शेल नंबर 2, तो दूसरे शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीजन स्टेट यहां पर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना के Np, जैसे यहां पर PCl5 बन गया, इस तरह से NCl5 नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। तो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप जो यहां पर नोट करोगे वो ये कि बल्कि तीसरा पॉइंट है। आप पहला पॉइंट ये था कि +3 और +5 ऑक्सीजन स्टेट्स ये एलिमेंट दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो +5 ऑक्सीजन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने से नहीं आएगा, वो आएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से। तो तीसरा पॉइंट ये है, जो जो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ये जो +5 ऑक्सीजन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state decreases as we move down the group। जो ही आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, +5 ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट विल गेट डिक्रीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस जो है ये आसानी के साथ +5
स्टेट ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा, आर्सेनिक भी दिखाएगा। फिर जब आप एंटीमनी पे आओगे तो कम दिखाएगा। जब बिस्मथ पे जाओगे वहां पर तो +5 होता ही नहीं है, वहां पर ज्यादातर +3 ऑक्सीजन स्टेट होता है। हाँ, एक कंपाउंड है BiF5 जहां पर बिस्मथ +5 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, वरना बिस्मथ में +3 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +5। इसके लिए जो इफेक्ट जिम्मेदार है उसे हम इनर्ट पीयर इफेक्ट कहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पीयर इफेक्ट। नाम याद रखिए, इनर्ट पीयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पीयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट गेट्स डिक्रीज डाउनवर्ड्स। तो जब डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है बिस्मिथ में सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, तो वहां पर +5 स्टेट बहुत कम आपको दिखाई देगा। अगर कहीं पे किसी कंपाउंड में होगा भी तो भी उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने रीजन ये बता दिया, इनर्ट पीयर इफेक्ट। इनर्ट पीयर इफेक्ट का मतलब हो गया जो वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP3, जो ही हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये जो NS2 वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत कम दिलचस्पी दिखा रहा है। इट डजंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज वी मूव डाउनवर्ड्स। तो इस NS2 के इस इफेक्ट को, इस बिहेवियर को कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पीयर इफेक्ट। तो इसके अपनी रीजन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा करता है। तो इसकी वजह यह है कि जो इसके अंदरूनी शल जो होते हैं तो उनकी वजह से ये बात हो रही है। तो खैर वो हम इंशाल्लाह जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कशन हो जाएगा तो वहां पर ये बात डिस्कशन में आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये बात नोट करके रखिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस चीज से कहते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +5 है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। और चौथा पॉइंट इसमें आप जो आप नोट करोगे, ये जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है इन सम एलिमेंट्स, इन सम नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, दिस +3 ऑक्सीजन स्टेट इज बिकॉज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। यानी कुछ आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें +3 ऑक्सीजन स्टेट होता है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कोवलेंट है। कोवलेंट कंपाउंड्स में भी, इन कोवलेंट कंपाउंड्स these elements show +3 oxygen state, and these elements also show +3 oxygen state in some of its ionic compounds। मिसाल के तौर पर अगर आप कंपाउंड देख लेंगे ASF3 and SBF3, ASF3 and SBF3, arsenic trifluoride एंड एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ये दोनों कंपाउंड जो है आयोनिक कंपाउंड हैं। क्योंकि फ्लोरीन जो है जानते हैं आप, ये पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है, एफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए जब फ्लोरीन एंटीमनी या आर्सेनिक से रिएक्शन करता है तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस वजह से आर्सेनिक पे +3 चार्ज आ जाती है और एंटीमनी पे भी +3 चार्ज आ जाती है। तो ये +3 चार्ज जो है ये अब रियल चार्ज है। ये तो इसके आयोनिक कंपाउंड, इन आयोनिक कंपाउंड्स में इन एलिमेंट्स का ऑक्सीजन स्टेट +3 होता है। उसके बरक्स अगर आप लेंगे NCl3 या PCl3, जैसे कि अभी मैंने कह दिया PCl5 यहां पर है, इस तरह से PCl3 भी है। तो PCl3 और NCl3 जो है ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो बिकॉज इन दीज कोवलेंट कंपाउंड्स, इन दीज कोवलेंट कंपाउंड्स क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। तो इस वजह से क्लोरीन पे तो माइनस चार्ज है, तो फास्फोरस पे +3 चार्ज आ जाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन पे भी हो रहा है +3, क्योंकि क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। तो इसलिए इन दो कोवलेंट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हैं इन पे +3 चार्ज है, बट इट इज इन देयर कोवलेंट कंपाउंड्स, यहां पर कोई लॉस और गेन नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन के बारे में तो एक पॉइंट, एक बात फिर से
रिवाइज कीजिए, देख लीजिए हमने क्या कहा। एज पर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज कंसर्नड, वो ये कि नाइट्रोजन फैमिली जो है ये माइनस नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट एज वेल एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल्स दे दी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेटस की भी और पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेटस की भी। तो इसके अलावा नाइट्रोजन जो बजाते खुद है, इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि नाइट्रोजन जो है जब आप देखोगे ये बहुत वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेटस एग्जिबिट कर रहा है। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेटस, इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो -3 से लेकर +5 तक आ जाती है। -3 से लेकर +5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेटस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में पाया जाता है। -3 भी, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5, ये सारे ऑक्सीजन स्टेटस नाइट्रोजन दिखाता है। इसलिए यहां पर मैं इस नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स लूंगा और फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है ये -3 से लेकर +5 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखा रहा है। मिसाल तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है NH3 अमोनिया। NH3 में हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो 3 पे +3, इसका मतलब है एक नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3। ठीक है ना। इसी तरह से अभी अभी हमने एक कंपाउंड आपको बता दिया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका नाम मैंने आपको हाइड्राजीन बता दिया। इस हाइड्राजीन में आप देख लीजिए, फिर से मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। 2 हाइड्रोजन पे +2 चार्ज, इन 2 पे +2 चार्ज, तो टोटल पे पॉजिटिव चार्ज +4 है, तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज -4 होना चाहिए। तो वो नेगेटिव चार्ज 2 नाइट्रोजन एटम्स पे है, इसका मतलब है एक नाइट्रोजन पे फिर -2 चार्ज आ जाती है। ठीक है ना। इसी तरह से एक और कंपाउंड जो हमने अभी अभी देख लिया, दैट इज NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका नाम मैंने बता दिया। इस हाइड्रोक्सिल एमीन में OH पे -1 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो हो गए +2। इस +2 में से एक नेगेटिव चार्ज OH से कंपनसेट हो जाती है, तो एक नाइट्रोजन से कंपनसेट होगा। इसका मतलब है इस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज -1। इसी तरह से आप एक और कंपाउंड देख लीजिए, कंपाउंड नहीं है ये एलिमेंटल स्टेट है, मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल जो है यहां पर ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का 0 है, जैसे आपने पढ़ा होगा H2 है, यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन स्टेट 0 है, Cl2 है तो 0 है। इन एलिमेंटल स्टेट में जब कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एटम जब एलिमेंटल स्टेट में होता है तो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट हमेशा 0 होता है। इसलिए N2 जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज 0। इसी तरह से इसका एक और कंपाउंड देख लीजिए N2O डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। -2, इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन पे +2 आएगा, दैट मींस एक नाइट्रोजन पे 2 पे +2 है, एक पे +1, N2O। अब एक और कंपाउंड देख लीजिए नाइट्रोजन का, इट इज दिस मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन पे +2 चार्ज होगी। इसी तरह से एक और कंपाउंड है इसी नाइट्रोजन का, दैट इज N2O3, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। तो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6। जब 3 ऑक्सीजन पे -6 है तो 2 नाइट्रोजन पे +6 होगी, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, टोटल चार्ज तो कंपाउंड पे कोई है ही नहीं। इसका मतलब है जितनी नेगेटिव चार्ज है उतना ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सो दैट दे विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो जब माइनस चार्ज -6 है ऑन ऑक्सीजन, देयर शुड बी +6 ऑन 2 नाइट्रोजन, दैट मींस एक नाइट्रोजन पे चार्ज होगी +3, N2O3।
अब देख लीजिए इसका एक और कंपाउंड, वो मैं इस साइड पे लिखूंगा, दैट इज NO2, या नीचे लिखूंगा मैं कंपाउंड NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी एक और फार्मूला है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। चाहे आप ये लीजिए या ये लीजिए, डाई नाइट्रोजन टेट्रा। और यहां पर लीजिए ऑक्सीजन पे दो ऑक्सीजन है तो -4 चार्ज है, जिसका मतलब है नाइट्रोजन पे +4। यहां कैलकुलेट कीजिए, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो 4 ऑक्सीजन है, यहां पर हो गई -8, तो 2 नाइट्रोजन है तो +8 2 नाइट्रोजन पे होगा, एक पे होगा +4 NO2। इसी तरह से इसका एक और कंपाउंड है, दैट इज N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 ऑक्सीजन पे -10 चार्ज, तो 2 नाइट्रोजन पे +10, तो एक नाइट्रोजन पे +5 चार्ज आ जाएगी। अब देख लीजिए ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की चार्ज जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नाइट्रोजन का, इट गोज ऑन फ्रॉम -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इन सारे +3 देन +4 एंड +5, इन सारे कंपाउंड्स में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो इस तरह का ऑक्सीजन स्टेट बाकी एलिमेंट्स तो नहीं दिखा रहे हैं। तो इस चीज से आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब भी हमें किसी एलिमेंट का या किसी ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करना हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते वक्त हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। एक ये कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलता है। हमें ये देखना है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से ये कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। जैसे एस ब्लॉक में आप देख रहे हैं, वहां पर पहले ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए वहां पर वो एलिमेंट जो है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, दे प्रेफर टू लूज देयर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स in order to achieve the nearest noble gas configuration। इसलिए उसी हिसाब से वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या शेयर करते हैं, उसी हिसाब से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है ना? तो लॉस जो करेगा उसका पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, तो उसके लिए भी जितने वो गेन करेगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसलिए ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ज्यादातर जनरल ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप देखेंगे कि कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेटस दिखा रहा है, तो उसमें आपको ये देखना है कि ये एलिमेंट जो है ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है, किस टाइप्स के कंपाउंड्स बनाता है। तो उन कंपाउंड्स की बुनियाद पे हम उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट आएगा, कहां पर नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर हम असाइन करते हैं, और फिर फार्मूला जो है उसके हिसाब से जो हमारे पास रूल्स हैं, जैसे आप अभी मैं बता रहा था, हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीजन पे -2, ये अक्सर इन पे यही चार्ज होते हैं। तो उसी की मदद, जब एक एलिमेंट का हमें कॉमन ऑक्सीजन स्टेट मालूम होगा तो दूसरे का हम उसी की मदद से फिर कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के वेरियस ऑक्सीजन स्टेट्स कैलकुलेट किए। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है कि आपको उस एलिमेंट के कंपाउंड्स देखने हैं कि ये किस तरह के कंपाउंड्स बना रहा है, उन कंपाउंड्स की फार्मूला क्या है, तो फिर हम उस बुनियाद पे इन कंपाउंड्स की या इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही हो सकता है। तो इंशाल्लाह ऑक्सीजन स्टेट जो है अब ये कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप किसी भी ग्रुप की ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस करने के लिए अपनी किताब खोलोगे, अब सारी पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा।
दो तीन चार ग्रुप्स के तो मैंने खुद ही डिस्कस कर लिए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, नाइट्रोजन फैमिली और हैलोजन फैमिली। आप इसमें रह जाते हैं बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली और हैलो और नोबल गैसेस, ठीक है ना। तो वो आप यही चीज जो हमने बता दी, जिस तरह से हमने इन ग्रुप्स में एक्सप्लेन किया, इसी को बेस बना के आप दूसरे ग्रुप्स का ऑक्सीजन स्टेट जो है वो आसानी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो टुडे इट इज sufficient for today. Inshallah, tomorrow we will go to the next topic of this S&P block elements. Thank you very much.